Okay, so next we will discuss the eukaryotic cells. Eukaryotic cell is the advanced cell, means we all are made up of the eukaryotic cells. Each and every cell inside us or other animals like cat, dog, cow, they all are eukaryotic organisms. Whatever be the number of cells, for example, in humans there are 40 trillion cells. Maybe only 10 billion cells are there in cats. Okay, so whatever be the number of cell, each and individual cell is eukaryotic in us because we are eukaryotic organisms. Prokaryotic organisms having a prokaryotic cell, that we have discussed the characters of prokaryotic cell. Generally and necessarily the prokaryotic cells are unicellular. Maybe a few will be exception, but the prokaryotic cells are unicellular organisms, and multicellular organisms are mostly eukaryotic. Okay, there are some organisms which are unicellular and eukaryotic. There is a transition zone. The unicellular organisms are prokaryotic. Then the number of cell does not evolve. The cell itself evolve. Okay, the organisms remain unicellular, means only a single cell. The organism is unicellular, but that cell evolve, that becomes eukaryotic from prokaryotic. Okay, some changes arises in the cell with course of time, and the cell become advanced and cell becomes eukaryotic. Organism remains unicellular. After so many years, the unicellular organisms which were eukaryotic, okay, they start gaining some more cells. Now the number of cells increase and they become multicellular. But evolution occurs from simple to advanced. So even the multicellular, but they were very simple. They are having maximum 1,000 to thousands of cells. So if there are thousands of cells, there will be no organs, there will be no organ system, and there will be no organization or no complex organization like humans. Okay. Then further advancement occurs in the biology or in the life. Multicellular eukaryotic gain more number of cells. If there are high number of cells like 40 trillion in humans, so they have to be arranged in different organs, organ systems, and the complete organization of our human system arises. Okay, so very firstly, the number does not increase. The prokaryotic become eukaryotic but remain unicellular, and that domain is called protist. Monera are unicellular prokaryotic, protists are unicellular eukaryotic. Okay, so let's just discuss about that advanced cell which is called eukaryotic cell, which is the basis of advanced life. So in eukaryotes there are many kingdoms like fungi, animalia, and plantae. Okay, protist is also eukaryotic, but that is unicellular, so we will also include in eukaryotic cell. So in these four kingdoms, okay, animal cell is different, plant cell is different, fungus cell is somehow similar with plant, but there are slightly difference like chloroplast, and protist cell is different. So we are going to draw the plant cell, the eukaryotic plant cell. Okay, so we were discussing the eukaryotic cell and particularly the plant cell. The outermost covering in the plants is cell wall. We will discuss the structure of cell wall separately. It is itself made up of three layers: the primary cell wall, secondary cell wall, and the middle lamella between two plant cells. The outermost layer will be middle lamella. After middle lamella there is secondary cell wall and then primary cell wall. Means inner to the cell membrane is primary cell wall, then secondary cell wall, and then middle lamella. So we will discuss that structure separately. So in a plant cell, the outermost covering is cell wall, which makes the plants rigid and to be hold up to a height of 400 feet even. ठीक है, plant को इतना rigid जो बनाती है वो cell wall बनाती है, because each and every cell of plant necessarily have the cell wall. Inner to the cell wall is cell membrane.
Cell membrane is kind of fluid structure, so it is not rigid. Cell membrane or plasma membrane. The main function of cell membrane is for transport of the molecules. Okay, endocytosis, exocytosis we will study. The function of the cell membrane is for the transport because it is selectively permeable. Selectively permeable होती है, कुछ चीजें ही पास हो सकती हैं, कुछ चीजें पास नहीं हो सकती, और सेल मेम्ब्रेन उसको सेलेक्ट कर सकती है which molecule or which ion to be passed or not. The component of cell wall are considered dead. So cell wall is slightly thick as compared to cell membrane. Cell membrane is bilayered, made up of phospholipids. Phospholipid bilayer भी बोलते हैं. Inner to cell membrane is cytoplasm. There are no pili, there are no flagellum like the prokaryotic cell. So all of the inner content, this living content is cytoplasm. Cytoplasm plus cell membrane plus nucleus. The cell membrane plus cytoplasm, all of the organelles plus nucleus, इन सबको मिलके हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. या हम कह सकते हैं कि केवल सेल वॉल के अलावा, अदर देन द सेल वॉल, द कंप्लीट रिमेनिंग प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट. क्लियर है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? केवल सेल वॉल को छोड़ के बाकी सारा कंपोनेंट क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट. क्लियर है? यस यस सर. कई बार पूछा जाता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है. साइटोप्लाज्म में बेटा न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. इन द साइटोप्लाज्म the main thing which we will discuss is the nucleus. Since it is a plant cell, it is having a large vacuole. Plant cells के अंदर एक vacuole होता है. This is the vacuole of plant cell. Vacuole present होने की वजह से, vacuole इससे भी ज्यादा large होता है, स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है. उसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता. अगर ये एनिमल सेल होती तो न्यूक्लियस सेंटर में होता. ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस एजेस की तरफ क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है. न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. थोड़ा सा अगर मैं क्लियरली ड्रॉ करूं, स्पेस वहां पे कम है, तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस नहीं है, बीच में क्या होते हैं? ओपनिंग्स होती हैं. इस तरह से न्यूक्लियस है बेटा. ये जो ओपनिंग्स है इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, तो यहां पे ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस का भी एक सेंटर होता है. ठीक है, यह है न्यूक्लियस, और इसके अंदर भी जो सेंटर है वो कहलाता है न्यूक्लियोलस. ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए. मींस in eukaryotic cell the DNA is well organized, packed inside a membrane bound organelle that is called nucleus. ठीक है, सेकेंड थिंग, ये डीएनए पैकेजिंग भी होती है इस डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड. पैकेज्ड डीएनए होता है ये. एक तरह के प्रोटीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, उनके अराउंड पैक होता है. ठीक है, मैनी क्रोमोसोम्स होते हैं, केवल एक सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता. लाइक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स. ठीक है, इसके अलावा हायर ऑर्गेनेलीज भी होती हैं. ठीक है, हायर ऑर्गेनेल्स के देखिए, सपोज दिस इज न्यूक्लियस दैट आई हैव ड्रॉन. सपोज दिस इज द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की ही आउटर मेम्ब्रेन से, ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एक ऑर्गेनेल अराइज होती है इस तरह से. ठीक है, जो चली जाती है कहां तक? लास्ट में सेल मेम्ब्रेन तक. ठीक है बच्चे, मैं न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ कर देता हूं. न्यूक्लियस की ही आउटर मेम्ब्रेन से देखिए
एक ऑर्गेनली चली जाती है कहां तक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जब ये जा रही है तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास यहां पे इस ऑर्गेनली में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से इसके सरफेस पे। इस ऑर्गेनली को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहां से अराइज होती है? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के पास इसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच हैं। तो राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से, सपोज ये कोई स्मूथ सरफेस है, इस पे ये राइबोसोम्स है, तो ये रफ हो जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है वो क्या होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? यस सर। जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, मीन सेल मेम्ब्रेन की तरफ, तो इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, तो ये क्या है? स्मूथ है। तो दूर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? ये जो राइबोसोम्स बेटा इसके ऊपर अटैच है न्यूक्लियस के पास, अराइज कहां से होती है? क्वेश्चन आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइजेस फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। सेकंड थिंग, ये जो राइबोसोम्स अटैच है ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है? राइबोसोम्स यहां तो अटैच है ही, उसके अलावा सेल में फ्रीली भी हो सकते हैं प्रेजेंट। ठीक है? वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। उसके अलावा एक ऑर्गेनली होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ही है और इंडिपेंडेंट है साइटोप्लाज्म में, किसी चीज से लिंक नहीं है। इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सर्कुलर एंड्स होते हैं, इसको बोला जाता है गोल्जी। कैमेलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे है। ठीक है? यहां मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स होते हैं या वेसिकल्स होते हैं, इस तरह से पैकेट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन कहां बनेंगे? ट्रांसलेशन कहां हो रहा है? अभी मैंने बताया। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। वो प्रोटीन्स पैकेट्स में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है? वो पैकेट पहुंचते हैं गोल्जी बॉडीज के पास। अब गोल्जी बॉडीज को ट्रैफिकिंग सेंटर बोला जाता है। सारा ट्रैफिक इसके पास आ गया, इसकी मर्जी अब ये कहां पे चीजों को एक्सपोर्ट करेगा। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देगा, यही वैक्यूल को देगा, यही न्यूक्लियस को देगा, यही सेल वॉल को देगा, उन प्रोटीन्स को। ठीक है? तो इसको ट्रैफिकिंग सेंटर बोला जाता है, गोल्जी बॉडीज। अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए गोल्जी बॉडीज का, तो सबसे मेन फंक्शन क्या है? ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर है बेटा ये चीज? यस यस सर। इसके अलावा देखिए, अब क्योंकि प्लांट सेल है तो एक ऑर्गेनली होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, मेन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करवाएगा। ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह का होता है। सारी ऑर्गेनलीज हम डिस्कस करेंगे, मैं अभी ओवरव्यू बता देता हूं। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। अंदर इसके अंदर होते हैं थैलेकॉइड्स, इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक। ठीक है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बोला जाता है थैलेकॉइड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे सेल के अंदर लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाता है, उसके अंदर का लिक्विड कहलाता है स्ट्रोमा। ठीक है? थैलेकॉइड्स आपस में अटैच होते हैं थैलेकॉइड लैमिले से। थैलेकॉइड्स आपस में अटैच होते हैं थैलेकॉइड लैमिले से, और थैलेकॉइड इनर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं स्ट्रोमा लैमिले से। जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, थैलेकॉइड्स आपस में अटैच होते हैं थैलेकॉइड लैमिले से, और इनर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं स्ट्रोमा लैमिले से। ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट होंगे पर सेल 1 से लेके 5000 तक, 1 से लेके 5000 तक पर सेल क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं। किसी प्लांट सेल में एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, किसी प्लांट सेल में 5000 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं। अदर देन क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ? यस, अदर देन दिस एक ऑर्गेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? हाई नंबर प्रेजेंट होते हैं, जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल में उतनी ज्यादा एनर्जी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं।
अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टी, फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड होता है उसको बोला जाता है क्या, मैट्रिक्स, ठीक है बेटे। माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है खुद का जिसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए बोला जाता है, पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी, ठीक है। तो इसके अंदर होती है मैट्रिक्स। इसके इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है वो इसीलिए फोल्डेड है बेटा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन आ सके। आप ये चीज समझिए, अगर इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं तो सबको पता है पेरीफेरी, परिधि क्या होती है। अगर सिंपल इनर मेम्ब्रेन होती है इस तरह से तो इसमें कितने प्रोटीन आ जाते मैक्सिमम, सपोज 100 आ जाते। अब इनर मेम्ब्रेन अगर फोल्डेड है, ठीक है, और आप प्रोटीन लाने तो आप देखिए पेरिफेरल एरिया नहीं बढ़ गया, बताइए। यस सर। इसीलिए फोल्डेड है बेटा। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, इनकी वजह से ही एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आयरन सल्फर सेंटर, फेराडॉक्सिन, ठीक है, और साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी, बहुत सारे इसके अंदर प्रोटीन्स हैं which we will discuss in respiration। तो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, वेल अरेंज्ड न्यूक्लियोलस है, वेल अरेंज्ड डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज अरेंज्ड इन क्रोमोसोम्स, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड पैक्ड है, ठीक है। इसीलिए क्रोमेटिन बनाता है, यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। वैक्यूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है यहां तक?